Hello children, I welcome to the second phase of this chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. I'll quickly give you a recap of what we have done in phase 1. The narrator's grandmother and late grandfather are introduced and they're described about. During childhood he used to live with his grandmother. She would take care of him, take him to the village school, read scriptures during that time and feed stray dogs on their way home. Later when they shift to the city, a change begins. Next. This is where we need to continue. We were reading the chapter. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I've taken only this much because I want you to relate again that if you remember now in the city, the author used to go to the city English school through a motor bus, and then they shared the room, they were given the same room, but then definitely there was a change in the relationship because now grandmother, she was trying to adjust to the city atmosphere, so they started seeing less of each other because life of author had completely changed. She continued to wake him up and get him ready for the school, but whenever he would return and she used to ask कि तुमने आज क्या पढ़ा, तो ये ask से हमें पता लगता है कि वो कुछ expect कर रही थी कि जो अब तक what she was teaching the author in the village, or was he learning all that or not. And when in answer she would come to know that no, what all he was learning is not at all what she had taught him in the village. It did not have the alphabet, it did not have knowledge of prayers or any scriptures, so she used to feel sad. This shows her expectations that grandson should receive the right kind of education. According to her, right kind of education was learning about prayers, learning about religion, maybe learning about culture or such things. So gradual changes in their relation, they start coming up. Next. I would tell her English words and the little things of Western science and learning. दिस इज वॉट द आंसर वॉज नो कि स्कूल सिटी के स्कूल में क्या सीख रहा है. प्लीज मार्क इट. नंबर 1 इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. नंबर 2 3 लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल 4 वर्ल्ड बीइंग राउंड 5 एटसेट्रा. एंड ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. ये फ्रस्ट्रेशन थी ग्रैंड मदर को अंदर ही अंदर कि ना वो शी कुड नॉट अकम्पनी him, she could not even help him with her lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given music lessons, और जब उनको ये पता लगा कि वहाँ म्यूजिक भी सिखाते हैं, she was very disturbed. Why? To her, music had lewd associations. According to her, म्यूजिक की गलत, म्यूजिक का मतलब एक गलत तरह के आगे के रास्ते होते हैं. एसोसिएशन म्यूजिक के अच्छे नहीं होते, शरीफों का काम नहीं होता. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैलट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. वो शरीफ इज्जतदार लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि म्यूजिक बना होता है हालट्स. हालट्स कौन होती हैं? दोज विमेन हु डू नॉट हैव अ गुड कैरेक्टर, हु आर नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, या बेगर्स, भिखारी लोग. तो वो गलत लोगों के साथ म्यूजिक को के बारे में सोचती थी. ये ल्यूड एसोसिएशंस हैं जो वो सोचती थी म्यूजिक के साथ हैं, और वो शरीफों की चीज़ नहीं है. शी सेड नथिंग but her silence meant disapproval. अब ये this is what we have to note. अब there she was very disturbed. She was already undergoing stress. She could not accept the way grandson was being given Western education. But क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं, कुछ बोले नहीं. She said nothing, but her silence meant disapproval. और उन्होंने साइलेंस ही स्टार्ट कर दिया. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. ये हमें देखना है उनका रिलेशनशिप पहले विलेज में कैसा था और अब साइलेंस ही आ गया. साइलेंस क्यों आया? डिसअप्रूवल की वजह से आया, और अब उन्होंने बात ही करनी छोड़ दी उससे, बहुत ही कम. When I went up to university, अब here begins the third phase of their friendship. ये क्या है अब ये भी देखें. I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब थोड़ी बहुत उनमें जो फ्रेंडशिप थी वो थी क्योंकि उनका रूम एक था, बट जब ऑथर और ज़्यादा ग्रोन अप हो गया, मेच्योर हो गया, तो parents gave him a separate room. And when grandmother was secluded होता है आइसोलेट कर देना, अलग कर देना. When grandmother was secluded, she accepted her seclusion with resignation. उन्होंने accept तो कर लिया.
क्योंकि इट वॉज नॉट इन हर नेचर टू रिटेलिएट, टू अपोज, टू फाइट, टू क्रिएट अ क्योस. शी डिड नॉट डू दैट. उनकी नेचर नहीं थी. शी वॉज वेरी पीसफुल. यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, पीसफुल एंड कंटेंटेड थी. तो वो बोलती कुछ नहीं थी, बस वो चुप कर जाती थी. लेकिन साथ ही उन्होंने पिछली बारी तो शी केप्ट क्वाइट जब उन्होंने देखा कि सिटी स्कूल में ऑथर की एजुकेशन अलग तरह से है, शी डज नॉट लाइक इट. बट नाउ व्हेन रूम वॉज गिवन, अब सिर्फ साइलेंस नहीं आया, अब रेजिग्नेशन आया. अब रेजिग्नेशन क्या होता है? रेजिग्नेशन मीन्स टू गिव अप एक्सपेक्टेशंस, कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो. उनकी सोच ऐसे थी कि जैसे उन्होंने दुनिया से अपना, शी हैज एज इफ शी हैज गिवन अप ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड. उन्होंने सब सब प्यार छोड़ दिया. अब आफ्टर एक्सेप्टिंग द seclusion with resignation, we will notice her change in behavior. Wherever this change is going to come, I have highlighted that with a yellow tick. तो यहाँ पे पहला येलो टिक आता है. एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Resignation दिख रहा है. वो the whole throughout the day she used to keep on staying. She used to keep on spinning. कपड़ा चरखा जो चलाने का होता है. दूसरा, from sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. दूसरा काम वो करती थी, reciting prayers, sunrise से sunset तक पूरा दिन. Let's have a description of this. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. So, in the afternoon she used to feed the sparrows. आपको याद होगा, she used to feed the stray dogs in the village. अब stray dogs were not there in the village, so she started feeding sparrows. So now, whenever she would feed these sparrows, hundreds of sparrows used to collect around her. इतनी दोस्ती हो गई थी उनकी sparrows के साथ. और वो सारी की सारी veritable bedlam of chirpings. veritable मतलब proper, खूब सारा bedlam, confusion create करती थी. चूं 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 की आवाज़ें करती थी. chirpings, but birds के बैठने की आवाज़ होती है. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. तो उनके ऊपर बैठती थी स्पैरोज आके, कुछ लेग्स पे. perched मतलब sitting, लेकिन ये वर्ड birds के लिए ही यूज होता है. Some sat on the head. She smiled but never shooed them away. क्यों? She did not shoo away the sparrows also, चाहे वो उनको परेशान ही क्यों ना करें, because she was a lady who was very peaceful and contented. वो किसी से लड़ने वाली उनकी नेचर ही नहीं थी. अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा तो वो एंजॉय करती थी, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो उन्होंने क्या किया था? डिसअप्रूवल हुआ था, साइलेंस आ गया था. साइलेंस का अगला लेवल क्या आया था? रेजिग्नेशन. हमें भी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर. वो ऐसे नहीं थी कि किसी की तरह लड़ के अपनी बात मनवाए. नहीं हो रहा तो पहले साइलेंस, उसके बाद रेजिग्नेशन. तो रेजिग्नेशन की 2 points we have marked. It used to be the happiest half an hour of the day for her. When she used to feed the sparrows, that was the happiest part of the day for her. Now quickly I'll see blue things at the bottom we have done. Those are word meanings. And then let's see the top blue part. How did Khushwant Singh's joining his school in the city cast an impact on his grandmother's behavior? All this is written in the first paragraph on this page, and it is also underlined. These are the reasons. This is the school education that I have made you mark. And what is the impact? Impact is in the last line of this paragraph. She said nothing but her silence meant disapproval, and she rarely talked to me after that. ये impact आया था. Now can you notice generation gap on this page? I'm sure you will be able to find out generation gap. Generation gap क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स और खुशवंत सिंह को लगता था कि इंग्लिश स्कूल इम्पॉर्टेंट है, ये सारी मॉडर्न एजुकेशन है. बट शी वॉज एन ओल्ड वुमन, शी वॉज कन्वेंशनल, शी हैड हर बिलीव्स ऑफ द conventional orthodox age. She wanted him to learn according to what she thought was right. She was not updated. That is why she was disappointed also. One thing written at the bottom, gradual changes in relation. वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ कि इस तरह से उनके रिलेशनशिप चेंज होता रहा. थर्ड फेज में हम पहुँच चुके हैं, थर्ड फेज ऑफ देयर फ्रेंडशिप में हम पहुँच चुके हैं. अब एक क्वेश्चन, डू यू थिंक फ्रेंडशिप इज रिक्वायर्ड और सॉट फॉर? कहीं आपको ये लग रहा है कि ग्रैंड मदर को फ्रेंडशिप चाहिए थी ऑथर की? जस्ट थिंक, I think you will be able to understand that yes,
जैसी ग्रैंडमदर की और फ्रेंडशिप ऑथर के साथ थी विलेज में, वो चीज़ नहीं थी। जब उससे बातचीत करनी कम हुई, साथ के साथ स्पैरोज के साथ दोस्ती स्ट्रांग हुई, साथ के साथ फेज 3 में स्पैरोज के साथ वो एक अच्छा खासा हाफ एन आवर शी यूज टू स्पेंड विद द स्पैरोज एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड गैदर अराउंड। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज इज अ बिग नंबर, सोच के देखिए। तो ये क्या है, ये एक्चुअली जो चीज़ उसको घर में नहीं मिल रही ग्रैंड मदर को, वी आर ह्यूमंस, वी लुक फॉर दैट थिंग समवेयर एल्स। साइकोलॉजिकली ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को समझिए, दैट ग्रैंड मदर रिक्वायर्ड association, acceptance. She required that what she is doing is good. Somebody should say that. Humans stopped doing that. She went to sparrows. She started feeding the sparrows, and hundreds of sparrows would come close to her. They would touch her. They would sit on her, and this gave her pleasure. This gave her satisfaction. This gave her moral support that she was right, that she had some value. So this is how you should understand grandmother's character. Next. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. At her age, one could never tell. यहाँ पे one could never tell का मतलब क्या है? लोग सोच रहे थे फैमिली मेम्बर्स कि 5 साल के लिए इफ़ ऑथर गोज अब्रॉड, मे बी जब तक वो वापस आए ग्रैंड मदर की डेथ हो जाए। कुछ नहीं पता बुजुर्गों का कि वो कब मर जाएं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। इस लाइन को आई हैव गिवन अ पिंक हाईलाइट इन द पिंक बॉक्स। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमार्क बाय द पोस्ट बाय दिस ऑथर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि हमें लगता था कि वो कभी भी मर सकती हैं, बट माई ग्रैंड मदर कुड। उन्हें पता था कि उन्होंने कब मरना है। ये उन बाद में आके इसकी डिटेल आएगी आगे जाके कि ग्रैंड मदर को पता था कि उन्होंने कब मरना है। वो इतना पाठ करती थी, मे बी उन शी हैड दैट पावर। एनीवेज, अब ऑथर इज गोइंग टू गो अब्रॉड। अब उनको लगता था कि ग्रैंड मदर होंगी अपसेट, शी विल क्राई अ लॉट। लेकिन हुआ क्या? शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। ये क्यों हुआ? सी द येलो मार्क. This yellow tick means because of the resignation. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. I have put 4 yellow ticks in this much part. Let's observe कि कैसे हमें दिख रहा है कि ग्रैंड मदर ने रेजिग्नेशन किया हुआ था। उनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, या कह लो उन्होंने शो करना बंद कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब अब मेरे कहने से बाहर है। तो उन्होंने गिव अप कर दिया अपने एक्सपेक्टेशन से। सेंटिमेंटल नहीं हुई, नंबर 1। शी डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, नंबर 2। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, नंबर 3। फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, नंबर 4। साइलेंटली शी जस्ट किस्ड द ऑथर्स फोरहेड, and these are the 5 things which show that she had stopped expecting anything from the author or his parents about how to bring up author or how to educate him, or that she wants to stay with the author or something like that. So वो अपने आप में बिजी हो गई थी, चाहे वो अपनी प्रेयर्स थी, चाहे वो इमोशनल कंट्रोल था, whatever. Then, but that was not so. आफ्टर 5 years, अब दैट वॉज नॉट सो क्यों हुआ? किस लाइन के लिए लिखा है? पिछली लाइन के लिए लिखा है, क्योंकि परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। परहैप्स लिखा है शायद। ऑथर ने अब्रॉड जाने से पहले सोच लिया था कि आज के बाद आई विल नॉट टच माई ग्रैंड मदर, हो सकता है मेरे आने तक वो जिंदा ना रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैट वॉज नॉट सो, इसलिए लिखा है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो वो स्टेशन पे थी। इससे क्या पता लगता है? इवन इफ शी हैज़ resigned, even if she has given up, she is performing the basic duty that a grandmother should be performing. Now again description of the grandmother आती है। She did not look a day older. उतनी ही बुढ़ी लग रही थी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि बुढ़ी हुई नहीं, या उसको चाहिए था कि वो सोचा था अच्छा थोड़ी और बुढ़ी दिखेंगी। नो, यहाँ पे उन्होंने ग्रैंड मदर की एज को मैक्सिमाइज कर दिया है। उन्होंने बोला कि वो पहले ही इतनी बुढ़ी थी कि वो शायद उनका बुढ़ापा पहले ही इट वॉज एट हिज मैक्सिमम एंड हाइएस्ट लेवल। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट अगला फिर आया उनके वापस आने के बाद, और उनकी हैबिट वही थी। क्या थी? kept on reciting her prayers. But फिर भी I will tell you not to forget that point that she had resigned, क्योंकि अभी फिर आने वाला है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she had fed longer
and with frivolous rebukes. पहले तो इनको समझे, frivolous rebukes, frivolous मतलब again and again, repeated, और छोटी छोटी सी, rebuke होती छोटी सी डांट, फ्रिवलस होती है छोटी छोटी सी, मतलब कि बड़ी क्या लो फ्रीक्वेंट सी, या कभी तेज कभी कम, कभी ऊंची बोल के कभी प्यार से, तो फ्रिवलस मतलब ऊपर नीचे होती हुई, जो एक तरह से कांस्टेंट टाइप की ना हो। अब यहाँ पे एक मैंने बॉक्स बनाया है, देखिए, हर न्यू फ्रेंड्स, हु वर ग्रैंड मदर्स न्यू फ्रेंड्स, स्पैरोज, whom she could scold and take care of too, like grandson earlier. पहले ग्रैंडसन के साथ उसका रिलेशन था, ग्रैंडसन को जबरदस्ती पार्ट सुनाती थी कि वो लर्न करे और उनका टेक केयर भी करती थी। ऐसे ही स्पैरोज के साथ शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम, कि उनको प्यार से कुछ बोल भी देती थी और उनको उनको खाना भी खिलाती थी, उनको टेक केयर भी करती थी। तो उनको ग्रैंडसन जैसी एसोसिएशन कहीं ना कहीं चाहिए थी। ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग फॉर यू कैन से सबॉर्डिनेट कंपेनियन, जिसको वो एक बच्चे की तरह रख सकें। आफ्टर ऑल शी वॉज अ मदरली फिगर। So we have to see that there was a big, you can say, hollow in her life. Something was really missing in her life, and due to circumstances, the family either could not understand, or you can say circumstances were such that she was expecting more than that was possible. Now quickly let's see the blue thing written on the left side. I have told you that she knew about the time of her death. That is why I have given that pink box. And then point to note, the grandmother kept on getting quieter gradually till she expired. हाँ, ये हमने देखना है over here. अब when the grandson returns from abroad, तो grandmother should be happy. Yes, she was happy. But look at the point how she enjoys, she celebrates the happiness. Number one, her happiest moments were with her sparrows only. और वहाँ पे उन्होंने हैप्पीनेस अपनी कैसी एक्सप्रेस करी, शी फेड देम लॉन्गर, नंबर वन, एंड विद फ्रिवलेस रिव्यूज, और थोड़ा ज़्यादा डांट के थोड़ा बोलने लग गई थी उनके साथ। तो ऐसे उन्होंने अपने एक हैप्पीनेस एक्सप्रेस की जब उनका ग्रैंडसन वापस आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। अगेन ये एक तरह से उनकी सेलिब्रेशन है कि खुशी के मारे थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हो गया था, उन्होंने प्रे नहीं किया। She collected the women of the neighborhood. Okay, understood, पास पड़ोस की लेडीज को बुलाया, got an old drum and started to sing, और ढोल की पीट के गाने लग गई। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. For several hours, कई घंटों तक वो पीट पीट के ढोल की कुछ गाने गाती रहीं। She kept on singing. अब point to note, ऑथर के आने के बाद till now she was quiet. This is what we have been told in the chapter. She starts speaking. Not only speaking, speaking in a rebuking way, scold करते हुए अंदाज में birds के साथ, number one, and singing loudly, singing for several hours together. और ऐसा कुछ हुआ नहीं है. There is no celebration as such in the chapter, but she is singing in the company of the women of the neighborhood, and that too for several hours. What I can think of here from the psychology of grandmother, maybe she has been keeping quiet for such a long time. Maybe for 5 years she hasn't spoken to anybody at all. Even before author went abroad, she was already quiet for many years. Now she wants to speak all that was there in her heart, and she wants to simply vomit it out, whatever she could not speak for all these years. So it seems that she was waiting for some day that she is going to speak or express what is hidden inside her for so many years. ये ही उनका एक odd behavior है. And after that, on the next page, she is going to pass away. We'll see soon. Describe her odd behavior before she passed away. ये उनका odd behavior है. Even her happiness was shown in seclusion. चुपचाप ही रहती थी, किसी से उन्होंने बात नहीं की. She did not speak to any family member. She did not speak to any person. यहाँ पे लिखा है she had no time for words. While she clasped me in her arms, I could see her reciting prayers. She was reciting prayers only. If she spoke to somebody, that were the sparrows, and that was singing. But she did not talk to people in the family. So author's friendship ends. We have known that because she's not speaking to anybody in the family, from her side, her friendship with the author has ended. But she still loves the author. That is why she is happy. That is why she goes to receive him at the station. And her friends in the life are birds. And it is in their company that she is happy.
So this we have to understand. I hope you are able to understand. Next slide. शी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. अब जो उन्होंने गाने गाए थे उनकी थीम क्या थी? उनमें थीम थी वॉरियर्स के घर आने की. तो यहाँ पे वॉरियर सिंबॉलिकली ऑथर को डिनोट करता है. इससे हमें पता लगता है दैट शी वॉज एक्चुअली हैप्पी फॉर द रिटर्न ऑफ द ऑथर. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. She was very, very old. So entire family kept on telling that don't sing so much. You will overstrain. You will get tired and you will harm your health. That was the first time since I had known her that she did not pray. और उस दिन तो प्रेयर भी नहीं की उन्होंने. तो ये बिल्कुल ऑड बिहेवियर था. ये did not pray भी एक सिक्लूजन और रेजिग्नेशन शो करता है कि शायद अब वो भगवान से भी, उनको भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज उनको खुशी लग रही थी कि उनका बच्चा घर आ गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और वही हुआ जिस बात का डर था. शी हैड माइल्ड fever. The doctor told us that she would go. Go means die. But my grandmother thought differently. She told us that she had only few hours before the close of the last chapter of her life. She knew that she is going to die soon. And she had omitted to pray. और उनको इस बात का अगले दिन अफसोस हो गया कि उन्होंने प्रेयर नहीं की. She was not going to waste any time more talking to us. So to her, talking to them was wasting time. उन्हें शायद ये पता लग गया था कि ये सब मेरे साथ नहीं जाना. ये दोस्ती, ये प्यार, ये बच्चों का प्यार, फैमिली का प्यार is not going to go with me in the afterlife, in life after death. So she did not waste time. She said, I'm going to pray. From her life had come to an end. She wanted to utilize whatever few more minutes she had in the best, positive, productive way. We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. फिर से अपनी माला जपते हुए, she kept on lying on the bed peacefully. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और अचानक उनकी मृत्यु हो गई. वो उनकी डेथ हो गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और उनके फेस के ऊपर एक शांत सा पीला सा रंग छा गया. पैलर होता है जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है तो पेल हो जाता है फेस, सफ़ेद सा हो जाता है, प्लेन सा हो जाता है. उससे हमको पता लग गया कि इस शांत में सफ़ेदी जो मुंह पे छा गई है, जो लाल रंग फेस का गायब हो गया, मीन्स शी इज़ डेड. फिर से मैं येलो मार्क्स आपको रिवाइज कराऊं. दिस शोज अ रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ. मैं कहूँगी दुनियादारी से उन्होंने अपने आप को तोड़ दिया था. शी डिड नॉट प्रे. उस दिन उनको ये लगा कि बिहेवियर उनका एबनॉर्मल हो गया. उनको सिर्फ अपनी गाने में ही उनको मज़ा आ रहा था, तो शी डिड नॉट प्रे. अगले दिन उनको प्रे ना करने के लिए रिग्रेट हुआ, तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ प्रेयर ही करूँगी, तुमसे तो बाद में अभी भी नहीं करूँगी. आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम. एंड देन थर्डली आई हैव पुट अ टिक दैट शी केप्ट ऑन प्रेइंग इन द बेड, टेलिंग हर बीड्स, माला फेरते हुए. और एंड में उन्होंने बिना किसी से बात की, किसी को कुछ बताया या एहसास कराया कि मैं जा रही हूँ. व्हेन शी डाइड देयर वाज अ पीसफुल पैलर. उनकी फेस पे एकदम से ब्लैंक हो गया. सो ग्रैंड मदर हैड बिकम फर्म हार्टेड. मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि आप डू यू अग्री विद दिस, कि उनका दिल थोड़ा सख्त हो गया था. येस, बिकॉज शी डिड नॉट टॉक टू एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, रादर शी केप्ट ऑन सिंगिंग. सिंगिंग में थीम था होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. दिस शोज की प्यार तो है ऑथर से, लेकिन ऑथर से बात नहीं करनी. शायद उनके मन में कोई नाराज़गी हो सकता है उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हुई, इस वजह से उन्हें लगा हो कि ऑल दिस इज एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज गॉड्स नेम. So it is possible that she had some firm-heartedness in her mind. Do you think that the grandmother was waiting to meet her grandson before she would die? Why or why not? This question I leave to your judgment. If you ask about my judgment, I feel it is possible. If you have to write the answer, you will get many points to say yes and to justify that. अब क्वेश्चन है कि तुम्हें लगता है कि ग्रैंडमदर अपने ग्रैंडसन को मिलने का इंतज़ार कर रही थी, अपनी मौत से पहले एक बार उनको मिलने का इंतज़ार कर रही थी. मुझे येस इसलिए लगता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव बीन टोल्ड दैट शी वाज ऑलरेडी साइलेंट व्हेन द ऑथर वेंट. शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी. That day also she did not show any expression, any emotion when she said bye to the author when he was going abroad. 5 साल बाद ऑथर वापस आते हैं. अचानक हमें ये पता लगता है कि उनको मिलने जाते हैं और घर आके she starts singing. She prays. पहले she prays, she tells the beads of her rosary and then she starts singing, but she does not talk to anybody. अब सिंगिंग में
ये पता लगता है कि वो इतने सालों से बोली नहीं थी पॉसिबली, इसलिए उन्होंने उनके मन में जो भी था उनको वो एक्सप्रेस करना था, बाहर निकालना था। ये सिंगिंग इंडिकेशन थी कि उनका वक्त खत्म हो रहा है, ये सिंगिंग इंडिकेशन थी कि शी इज़ गोइंग टू डाई सून। यही सिंगिंग इंडिकेशन थी दैट शायद उनकी लाइफ में कुछ अपने बच्चे के लिए, अपने ग्रैंडसन के लिए करना रह गया था, या उसको प्यार एक्सप्रेस करना रह गया था। ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि वो वेट कर रही थी। उन्होंने खुशी मना कर अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट कर कर, और उन्हें पता तो था ही कि वो कब मरने वाली हैं। उन्होंने ये सब करने के बाद ही उन्होंने बोला अब मेरा टाइम आ गया, अब मुझे जाने दो और मुझे प्रेयर करने दो, ताकि मैं मेरी मृत्यु, मतलब शायद उनको यही लगा होगा कि मृत्यु अच्छी ठीक तरह से हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। बाकी आप इसे पढ़ें, समझें कि एक इंसान, एक ग्रैंड मदर का सोचना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका थॉट क्या होगा एक परिवार में, उनकी सोच समझिए कि वो किस तरह के एज में खुद रही होंगी, और किस तरह की एज ये होगी जिसमें ऑथर यंग है। ये स्टोरी ज़्यादा नहीं तो शायद 19 मे बी 40s या 50s की होगी। उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या क्या हो रहा होगा हिंदुस्तान में, और किस तरह से ग्रैंड मदर की एक्सपेक्टेशंस को आंसर नहीं मिला होगा, तो उन्होंने अपने बच्चे जैसे ग्रैंडसन के लिए क्या फील किया होगा और ये सब क्यों किया होगा। उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स प्रोसीड। सो ग्रैंड मदर इज डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, एक रीत होती है दैट वी हैव टू ले द डेड बॉडी ऑन द फ्लोर, ग्राउंड पे रखा जाता है, एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड, और उनके ऊपर एक लाल कपड़े से उनको ढक दिया। श्राउड वो कपड़ा होता है जो लास्ट टाइम एक डेड बॉडी को कवर करने के लिए किया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है रोना, अफसोस करना किसी की डेथ पे, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, तो वो अकेली थी कुछ टाइम के लिए, उनके शरीर को अकेला छोड़ दिया गया था और वो सभी अपने किसी न किसी काम में बिजी हो गए थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। एक स्ट्रेचर होता है, एक तरह से लकड़ी का फट्टा सा बनाया होता है जिसके ऊपर डेड बॉडी को ले जाया जाता है क्रिमेशन के लिए। क्रूड वो इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि वो उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है, वो अनयूज होता है, वो नॉर्मल भाषा में सुच्चा कह देते हैं उसको। द सन वॉज गेटिंग सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा वॉज अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम का वक्त था और उनके कमरे में गोल्डन लाइट की एक रोशनी पड़ रही थी। हम वेड़े में, कोर्टयार्ड में, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, right up to where she lay dead. She lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. देखने वाली बात है कि उनके डेड बॉडी तक और बाहर के कमरे तक, बरांडे तक, थाउजेंड्स, हजारों स्पैरोज इकट्ठी होकर जमीन पे बैठी थी। एंड देयर वॉज नो चर्पिंग, देयर वॉज नो चर्पिंग, एक भी स्पैरो बोल नहीं रही थी। दिस शोज कि किस तरह एक इंसान चाहे तो जानवरों से भी इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकता है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और माँ ने उनको रोटियां दी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू डू एंड थ्रू इट टू देम। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। ये सबसे सरप्राइजिंग और इमोशनल पॉइंट है स्टोरी का कि उन चिड़ियों ने जो हमेशा ग्रैंड मदर से रोटी खाने आती थी, उस दिन उन फेंकी हुई रोटियों को देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, और वो चुपचाप चली गई जैसे ही ग्रैंडमदर की बॉडी को उठाया गया। उनको समझ आ गया कि बस शी इज गोइंग। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। शायद उस दिन के बाद वहां पे वो स्पैरोज रोटी खाने आई ही नहीं। तो यहाँ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि फ्रेंडशिप, कुड यू फाइंड एनी रोल ऑफ फ्रेंडशिप इन द चैप्टर? एक फ्रेंडशिप थी, सेम डेडिकेशन और कमिटमेंट ग्रैंड मदर ने ग्रैंडसन के साथ की। शायद कहीं ना कहीं उसको आंसर नहीं मिला। दैट इज वाई शी बिकेम साइलेंट, दैट इज वाई शी स्टॉप टॉकिंग टू पीपल, दैट इज वाई शी रिजाइंड, दैट इज वाई शी स्टॉप शोइंग इमोशंस फॉर ग्रैंडसन and maybe the family also. But where did she show emotions? She was a human after all. She continued to show those emotions to the sparrows. And at the end, when she died, sparrows, they proved to be such true friends. Compare the contrasting behavior of the birds. They proved to be her true friends. And they reciprocate her companionship.
you can see the behavior of the birds. It is very, you can say, an extension of what should have been the behavior of the grandson. Grandson did not bother to learn what she spoke, and these birds, they were better as friends to the grandmother. They did not take even notice of the bread that was thrown to them the day the grandmother died. So who was more trustworthy? Was grandson or these sparrows? This question is for you to think. आप इस बारे में सोचिए कि क्या स्पैरोज ग्रैंडसन से ज़्यादा प्यार करते थे ग्रैंडमदर को? मे बी यस. तो वी हैव सीन फ्रेंडशिप, वी हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप्स. हमने देखा कि रिलेशंस किस तरह से चेंज होते हैं, किस तरह से रिलेशन कहाँ से चला था विलेज लाइफ से और कहाँ पहुँचा जब ग्रैंड मदर को स्पैरोज से ज़्यादा स्पैरोज ने आके कितना प्यार दिया, कितना इम्पोर्टेंस दी, और ग्रैंड मदर ने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम लोगों से तो बात ही नहीं करूँगी. उन फैमिली मेम्बर से बात करना उन्हें वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा था. लेट्स प्रोसीड. ग्रैंड मदर का इतना ब्यूटिफुल कैरेक्टर पोर्ट्रेल हमने देखा. So it is very right that the chapter has been named character portrayal. मैं grandmother की सभी values को collect करके I have put them on this page. We have discussed all of them in details. Still, I'll quickly give a reading. Peace, serenity, contentment marked already in the chapter. Religious, very affectionate, responsible. She was a motherly figure. Generous, खुले दिल की थी. Compassionate to other creatures. डज नॉट क्रॉस अ लिमिट्स, एक्सेप्ट करती थी, अपने अपने दायरे से बाहर नहीं जाती थी. काम कंपोज थी, अपना टेम्पर लूज नहीं करती थी. कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल, नैरो माइंडेड, इनोसेंट. बेशक उन्हें कुछ पता नहीं था, अपनी सोच नहीं बदलती थी, पर वो इनोसेंट भी थी. उन्हें शायद किसी ने बताया ही नहीं कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आजकल नई अपडेशन है और जो मॉडर्न एजुकेशन है. इंट्यूटिव थी, उन्हें अपने टाइम से पहले पता था कि उनकी मौत का टाइम क्या होगा. एंड शी यर्न्स फॉर फ्रेंडशिप. वो बुरी तरह डेस्परेट हैं, उन्हें एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त चाहिए. उन्होंने वो दोस्त ग्रैंडसन में ढूंढा, पर शायद वो मिला जाके स्पैरोज में. नेक्स्ट, ग्रैंडसन का कैरेक्टर मैं आपसे डिस्कस करूंगी. इट इज ओनली ऑन दिस स्लाइड. ग्रैंडसन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिज ग्रैंडमदर. इसीलिए ही डिस्क्राइब्स हर विविडली, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. उनके किसी भी नेचर को क्रिटिसाइज नहीं करते. कभी एक बारी भी हमने ग्रैंडसन के मुंह से नहीं सुना कि वो नैरो माइंडेड थी, वो कन्वेंशनल थी, वो नहीं चेंज कर रही थी अपने आप को. ही कॉल्स अ ब्यूटिफुल, एंड एक्सप्रेशन ब्यूटिफुल को प्रिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया खुशवंत सिंह ने. ही लव्ड हर वॉइस, he loved her companionship. He observed all that she did, her routine, and writes about them with an appreciative expression. उनकी स्टाइल में लगता है कि वो ग्रैंडमदर की तारीफ कर रहे हैं. Brings her opinion to readers notice. हमें हमसे वाकिफ कराते हैं, हमें समझाते हैं कि ग्रैंडमदर चाहती क्या थी, बिना ये बोले कि वो क्या चाहती थी. और कहीं भी हमने ऑथर के मुंह से ये नहीं सुना कि जो वो चाहती थी वो सही था या गलत था. उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया. ये एक बहुत अच्छी आदत होती है ऑथर की. सीम्स हेल्पलेस इन द कोर्स ऑफ चेंजिंग फ्रेंडशिप. ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में ही नहीं थी, सब होता चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला. चेरिशेस द मॉइस्ट इम्प्रिंट ऑफ हर किस ऑन हिज फोरहेड. वो लास्ट किस को एक परमानेंट याद बना के 5 साल तक अब्रॉड में रहते हैं जब वो जा रहे होते हैं. द स्टोरी, ये एक नोट है, इसे एज इट इज लर्न करें, आपके फायदे में रहेगा. द स्टोरी इज अ रेमिनिसेंस. रेमिनिसेंस होता है पुरानी याद. अ फ्लैशबैक रिटन डाउन by the grandson as a tribute to his grandmother who laid the foundation of values in his life. वो जानते हैं कि ग्रैंडमदर ने उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज दी थी, उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए ये चैप्टर ग्रैंडसन खुद लिखता है, खुशवंत सिंह. नेक्स्ट, क्विक रिकैप. हाउ वॉज द ग्रैंडसन्स लाइफ डिफरेंट इन द सिटी एज कम्पेयर्ड विद हिज विलेज? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिफ्ट है. वॉट वॉज द ग्रैंडमदर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन? These 2 questions you're going to answer. Get your answers to me. I'll be happy to check them, to respond about them. And surely if you need more guidance, join my e-classes and be with me at e-classes with Shalini ma'am. My email ID and phone number are given on the page where you are watching this video. Thank you and have a nice day.